Hello, welcome to my accountancy class, the Masters. Before we start to watch the video, give a thumbs up to like the video and subscribe to the channel so that whenever I make the next video and upload to YouTube, it may reach to you first and you may have the first mover advantage by watching it. Now, today's class topic is the solution of a partnership firm, and we are going to solve question number 26 of T.S. Grewal, new edition, that is 2022-21. And the 25 question of the last session. In very short, I have mentioned here the question also. You don't need to see in the books again and again. There's a benefit for you. This is the question here for you. I have mentioned here. First of all, I am going to clear the question. In this question, there are three partners P, Q, and R. Ratio 5:3 balance sheet. Liabilities you have been given: creditors, bills payables, IFR, capitals of P and Q, and the stock, investment, debtors minus provision cash, R's capital, debit balance you have been given. Make it point here. It is the debit balance of the R's capital, plant and machinery. After the balance sheet, you have been given some adjustments to realize the assets and liabilities, and after that, the last line you should read: prepare the necessary ledger accounts. To solve these types of questions, we are having 4 steps. First step, read the last line of the question and draw the format. First, first format is relation account, second capital account, third bank account. These are the necessary ledger accounts which we are to prepare in this types of questions. First, relation account, capital account, and bank account. Bank account format I have not drawn. I will draw it after 2 minutes because I am not having the space on the board. That's why. You draw the format in your notebook if you are doing the practice. Now, after doing the format, we are not having the meaning of this line. The second step, solve the balance sheet of the question. Solve the balance sheet of the question means close all the accounts, all the realizable assets account as well as the liabilities account, and transfer the reserve surplus whatever. Come here. First of all, we are going to take the asset side of this question. Check here. You have been given stock, investment, debtors, and plant and machinery. These are the realizable assets. All assets are having debit balance. To close these, we have to credit them. We have to credit them. And a new account is opened here that is called realization account. So, debit the realization account and credit the assets to close assets. Debit the realization account. You are going to debit the realization account debit to plant and machinery, to stock, to investment, to debtors, etc. Now you can see that stock, plant, debtor. Make it point debtor should be recorded at 7100 rupees. 7100. Whatever the sense is there. In the market, you can see your debtors are 7100 and the provision for doubtful debt 450. 450 means provision for doubtful debt. केवल डाउट है कि शायद मार्केट में पैसा डूबेगा, लेकिन पैसा डूबा नहीं है. मार्केट में आपके डेटर्स 7100 के ही हैं, तो 7100 ही आपको यहाँ लिखना है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. ये आपकी असेट्स हैं. असेट्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं. जब आप इनको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे. असेट्स को क्रेडिट करना है. तो आप जो जनरेटिव लाएंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, यानी असेट्स के अकाउंट को क्लोज कर दिया क्रेडिट करके. अमाउंट आप बुक वैल्यू पर लिखेंगे. डेटर्स पर ध्यान देना. डेटर्स को आपको 7100 पर लिखना है. मार्केट में आपके डेटर 7100 रुपीज के ही हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका क्रेडिट बैलेंस होता है. जितने भी प्रोविजंस, रिजर्व, सरप्लस होते हैं क्रेडिट बैलेंस होते हैं. इनको क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे. तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन की आप इसे क्रेडिट साइड में देख सकते हैं. प्रोविजन for doubtful debt.
आपने इस तरीके से 5 अकाउंट्स क्लोज कर दिए, 1 2 3 4 और ये 5 मशीनरी। तो आपको एक चीज़ सीधी सीधी क्लियर कराते हैं कि यहाँ से प्लांट मशीनरी हट गया, स्टॉक अकाउंट क्लोज, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स क्लोज और प्रोविजन को भी क्लोज कर दिया। यहाँ प्रोविजन को यहाँ शो करना है, ठीक है। इसके बाद अब आप देखते हैं कि असेट साइड में 2 अकाउंट्स ओपन रहेंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आर्स कैपिटल, ठीक है। अभी फिलहाल आप लायबिलिटीज अकाउंट पर हैं। लायबिलिटीज में आपको क्रेडिटर्स दिया गया है, बिल्स पेबल दिया गया है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। किसी भी असेट से रिलेटेड रिजर्व को आप रिलेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। किसी भी असेट से रिलेटेड रिजर्व या प्रोविजंस को, पॉइंट पर ध्यान देना है, कोई भी आपका रिजर्व है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है या किसी भी एसेट से रिलेटेड है या कोई प्रोविजन है, वो रिलेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। अब इन 3 बैलेंस कैपिटल जो आपके हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स और एफआर, इनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। इन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए इनको डेबिट किया जाता है। तो एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आईएफआर डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन मींस रिलेशन को क्रेडिट कर दिया, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। और इस तरीके से आपने देखा ये आपके ये अकाउंट्स भी क्लोज हो चुके हैं। अब बैलेंस शीट में बचा क्या, केवल क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको नजर आ रही है कैश और कैपिटल, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने कैपिटल का फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। कैपिटल में पी और क्यू का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए लायबिलिटी साइड है। पी और क्यू का बैलेंस आपने यहाँ से यहाँ लिखा और ये वाला बैलेंस यहाँ लिखा, आपने ये भी यहाँ से हटा दिया। अब आपका आर का बैलेंस रह जाता है। असेट साइड डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो आर का ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इसलिए आर के डेबिट साइड में आपने ये मेंशन किया बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। आपका अभी यहाँ से ये भी कट चुका है। अब आप देखते हैं आपकी लगभग बैलेंस शीट सारी खत्म हो चुकी है, इसमें कोई अकाउंट नहीं रह गया है, केवल कैश अकाउंट है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, बनाना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो अब आप कैश अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। कैश अकाउंट का फॉर्मेट जैसे ही आपने ड्रॉ किया तो इसका ओपनिंग बैलेंस आपने डेबिट साइड लिखना है, वो 5600 है। अब यहाँ से ये भी गया, तो आपकी बैलेंस शीट पूरी हो चुकी है। अब उसमें कोई अकाउंट ओपन नहीं रह गया है। ये आपका कैश अकाउंट है और असेट है, इसलिए डेबिट बैलेंसेस होते हैं। कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड, और यहाँ पर वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो आपने बैलेंस शीट से कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया। आप इसे ओपनिंग बैलेंस लिखें या बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या बैलेंस ब्रॉट डाउन, बात एक ही है। फर्स्ट स्टेप, रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द फॉर्मेट। सेकंड स्टेप, solve the balance sheet of the question, close all the accounts except 2, capital account and cash account. Third step, solve the adjustments of the question. अब आपको जो एडजस्टमेंट दी हुई है क्वेश्चन की वो सोल्व करनी है। फर्स्ट, P2 इन्वेस्टमेंट ₹4 12,500। P जो पार्टनर है वो फर्म की असेट्स ले गया, उससे फर्म की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। P की कैपिटल को फर्म के अंदर, तो P की कैपिटल कम होगी तो एंट्री बनाएंगे आप P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब कोई पार्टनर फर्म से असेट ले जाता है तो आप ये मत सोचिए उसके पास बढ़ गया, उसके पास उसके घर बढ़ेगा जो कुछ बढ़ेगा, लेकिन फर्म में तो पार्टनर्स उससे कहेंगे तू तो असेट ले जा रहे, तेरी कैपिटल घटा रहे हैं हम, उसके कैपिटल को कम कर देंगे। तो एंट्री बनती P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो आप देखें P कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,500। इससे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, INV डॉट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लेकर। एंट्री क्या बनी, P ले गया, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन का क्रेडिट हो गया है। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में P's कैपिटल अकाउंट के नाम से ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 12,500 है। एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट जहां जहां हो सकता है एक साथ करते हैं। हमने जर्नल एंट्री सीखनी है, जर्नल एंट्रीज के बेस पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
I repeat the journal idea again. P is capital account debit. To realization account, realization credit. Next, अभी आपकी एडजस्टमेंट हो चुकी है. अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक एंड डेटर्स रिलायंस ₹4,11,500. प्लांट एंड मशीनरी वर सोल्ड टू क्यू ₹4,12 फॉर कैश. क्यू यहाँ पर असेट नहीं ले गया, वो असेट को परचेज कर रहा है, इसलिए उसकी कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास कैश बढ़ेगा, फर्म में कैश इंक्रीज होगा. और अनरिकॉर्डेड असेट्स सोल्ड ₹1500. ये अनरिकॉर्डेड असेट्स सेल करी हैं. तो कुल मिलाकर आपके पास 1 2 3 इन 3 ट्रांजैक्शन से एडजस्टमेंट से कैश आएगा. तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा. एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. टू रियलाइजेशन मींस रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा. असेट्स आपने यहां लिखी थी ना, रियलाइज वो यहां होंगी, याद रखिएगा. तो कैश के नाम से आपने लिख दिया स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड अनरिकॉर्डेड असेट्स. तो आपका ये वाला अमाउंट कैश को बढ़ा देगा. तो आप कैश में लिखेंगे डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में डिस्क्लोज कर सकते हैं स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, अनरिकॉर्डेड असेट्स. अमाउंट आपका 35,500. ध्यान रखिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करना है. यदि कोई बच्चा गलती से करता है टू स्टॉक टू डेटर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने नहीं क्रेडिट करके अकाउंट को खोल डाला. पर अब हम अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं. ठीक है. लास्ट एडजस्टमेंट आपकी बचती है इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. देखिए कैश कम हो जाएगा, कैश कम होगा तो क्रेडिट होगा. जब एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कम, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश में आपका ये आ गया रियलाइजेशन एक्सपेंस. ध्यान से देखें, केवल एक्सपेंस मैंने फिलहाल यहाँ शो किया. अमाउंट था यहाँ 900 का, लेकिन फिर भी यहाँ पर 14,600. ये कहाँ से आया? हम क्वेश्चन में बैलेंस शीट के ट्रीटमेंट करने के बाद एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं. एडजस्टमेंट्स में आपको असेट्स और लायबिलिटीज के रियलाइजेशन से रिलेटेड डिटेल होती है कि कितनी असेट्स को बेचकर कितना कैश आया, लायबिलिटी को कितना पेमेंट करा. फिर भी यदि किसी एडजस्टमेंट में कोई असेट से रिलेटेड बातें नहीं कही गई, तो उस असेट को इग्नोर कर देते हैं. और हम देखते हैं कि कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं रह गई जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, या कोई ऐसी लायबिलिटी जिसका हमने रियलाइज नहीं किया, एडजस्टमेंट में उसमें कोई जिक्र नहीं था. यदि ऐसी लायबिलिटी है जिसका एडजस्टमेंट में कहीं कोई जिक्र नहीं था, लेकिन आपने बैलेंस शीट से यहाँ लिखी हुई है, तो उस लायबिलिटी का बुक वैल्यू पर पेमेंट करते हैं. ठीक है. हाँ, यदि आपको असेट नजर आती है तो उसे इग्नोर कर दो, लेकिन लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में थी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखी है, लेकिन एडजस्टमेंट में कोई जिक्र नहीं है, उस लायबिलिटी का बुक वैल्यू पर पेमेंट करते हैं. पेमेंट करते हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपने किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. किस लिए? बिल्स क्रेडिटर्स के लिए, बिल्स पेबल्स के लिए. क्रेडिटर्स कितने थे? 10,000. बिल पेबल्स कितने थे? 3,700. तो टोटल कितना हो गया? 13,700. और 9,000 आपने 900 रियलाइजेशन एक्सपेंस की, तो टोटल आ गया आपका 14,600 का पेमेंट आ गया. ठीक है. ये आपका कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखने वाली बात थी. आपने पेमेंट कर दिया. अब इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको एक लाइन दी गई थी, उसमें लिखा था, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसमें था कि पी पार्टनर से इनका रेशियो ये था, और एक पार्टनर पी को अपॉइंट किया गया, और पी से ये कहा गया, फर्म ने कहा कि उसको रिलेशन के लिए जो भी रिलेशन का काम करेगा, डिसोल्यूशन का काम करेगा, और जो भी उसके लिए एफर्ट्स करेगा, उसके लिए इसकी मेहनत मीन्स रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा. फर्म उसको रेम्यूनरेशन देगी 1,000 रुपीज़ का, 1,000 रुपीज़ का फर्म उसको रेम्यूनरेशन. तो ये फर्म का एक्सपेंस है.
क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है तो इसलिए रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाला जाएगा, और फर्म उसको देगी तो उस पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो एडजस्टमेंट की कि फर्म कह रही है कि हम रिलेशन को डेबिट कर लेंगे, अपना खर्चा दिखा देंगे और पी को रेम्यूनरेशन देंगे, पी की कैपिटल बढ़ा देंगे, तो पी की कैपिटल क्रेडिट करनी है, ये कर दी रियलाइजेशन के नाम से, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप था हमारा रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द फॉर्मेट, सेकंड बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड एडजस्टमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, फोर्थ क्लोजिंग। क्लोजिंग आपकी, अब ये जो अकाउंट्स 3 ओपन है, रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, इनकी क्लोजिंग चल रही है और सीक्वेंस होता है इनका। फर्स्ट सीक्वेंस होता है आपका रिलेशन अकाउंट का। रिलेशन अकाउंट का आपने टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 73,200, सेम टोटल आपने वहां लिखना है। डेबिट माइनस क्रेडिट किया तो डिफरेंस निकल कर आया 6550। ये डेबिट का एक्सेस बैलेंस है जो कि लॉस कहलाता है, और इस लॉस से आपने कैपिटल कम करनी है, तो आपने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, ठीक है। और जर्नल एंट्री बनती है रिलेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी लॉस से कैपिटल कम होती है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। तो आपने इनकी तीनों की कैपिटल कम कर दें, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। आपने लॉस लिख दिया इनका 3275, 1965 और 1310। आपने लॉस लिख दिया, ब्रैकेट में शो कर सकते हैं आप लॉस डिस्क्लोज करने के लिए। अब इसके बाद क्या करना होता है आपको, इनका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस चेक करना होता है। आपने पी का क्रेडिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस किया डेबिट का, तो बाकी जो बैलेंस बचता है आपका, यहाँ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करके दिखाना है, यहाँ आपको पेमेंट करके दिखाना है कि कैश से पेमेंट होगा, और लिखना है बैलेंसिंग फिगर। इस बार जो बैलेंसिंग फिगर करके आया है क्रेडिट माइनस डेबिट, वो आपको कैश से पेमेंट करना है। एंट्री बनेगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे ही क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान से देखें, ये कैश आपका क्रेडिट माइनस डेबिट बैलेंस करके आया। पी का डेबिट एक्सेस है, डेबिट बैलेंस एक्सेस है, तो ये कैश लेकर जाएगा क्योंकि यहां इसका कुछ भी नहीं था, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर करके निकल कर आएगा 9310। Now we are going to prepare the cash account on the basis of the given informations. In the question you were given 5600 opening balance. After that, cash account debit to realization, assets को realize करके आया। इसके बाद यहाँ कैश कम हो गया, एंट्री बनी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश मीन्स कैश को क्रेडिट किया बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में डिस्क्लोज कर सकते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, रियलाइजेशन एक्सपेंस 14,600, और यहां पी और क्यू का पेमेंट करना है बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 22,775, 13,035। आर का देखें, आर कैश लेकर आएगा, इसलिए जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्म में कैश बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसका डेबिट ज्यादा था तो इससे कैश मंगाएंगे, और कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स
कैपिटल अकाउंट 9310, आपने कैश अकाउंट बना दिया। अब ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। अब आप देखेंगे कि कैश अकाउंट भी क्लोज हो चुका है, इसका कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं है। आप इसका दोनों साइड का टोटल करेंगे, डेबिट का और क्रेडिट का, दोनों साइड का टोटल मैच करता है तो सारा सॉल्यूशन सही है, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब आप इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे, टोटल चेक करेंगे कितना टोटल इसका निकल कर आया। इसका टोटल आपका 50,410 और इसका भी 50,410 निकल कर आएगा। कर भी नहीं चाहें तो आप 9 + 35 44 49 49 50 50,410, दोनों साइड का टोटल आपका ये इक्वल आ गया तो सारा सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक है, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इस तरीके से रिलेशन के टाइम पर जब आप डिसोल्यूशन की बात करें फॉर्म की, सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। ये टेम्परेरी अकाउंट खुला था रियलाइजेशन, जहां पर असेट्स बैलेंस शीट से यहाँ लिखी गई, उनको रियलाइज यहाँ किया जाता है, और बैलेंस शीट से रियलाइजेबल लायबिलिटीज यहाँ लिखी गई और यहाँ रियलाइज किया जाता है। एडजस्टमेंट के बाद असेट को ना देखकर आप केवल वो लायबिलिटीज देखोगे जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं थी और उसे बुक वैल्यू पर रियलाइज करोगे, जैसे इसमें था क्रेडिटर्स और बीपी। पेमेंट होते ही यहाँ पर कैश कम हो जाता है और असेट्स को रियलाइज करते ही कैश बढ़ जाता है। पार्टनर्स जब कैश लेकर जाएंगे उनकी कैपिटल कम करेंगे और ये कैश बैलेंसिंग फिगर से आएगा और कैश वहां लिख दिया जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जिसकी डेबिट ज्यादा आएगी उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, उसे कहेंगे कैश लेकर आए और कैश बढ़ा दिया जाएगा, जैसे इसमें आस कैपिटल के अकाउंट के नाम से था। इसमें लगभग सभी कॉन्सेप्ट आपके आ गए थे। आई होप that you have got the concept as well as the question. If still any doubt, can leave a WhatsApp message or can leave the comment, so that accordingly I will make the next videos to sort out your doubts. Thank you. Have a nice day.